स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो इट्स स्टूडेंट्स, हियर इज अवर न्यू टॉपिक which is related to the previous video also. This topic is of your class 9th, lesson number 2, polynomial, and the name of the topic, you can read it very carefully. What is division theorem? I think you know it earlier also, but you know it for the natural numbers, not for the polynomials. Division theorem is what? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Like, I just want to discuss an example here. Like, you have to divide 26 by 3. So here 26 is dividend, and because you have to divide by 3, that's why 3 is a divisor. And division goes how many times? 3 8s are 24, so 8 is a quotient. And when you subtract the 24 by 26, you get the remainder as a 2. Okay, so this whole is a division theorem. But here we are going to discuss the division theorem for polynomials. Okay, here we also we follow the division step, but we have to do it for the polynomials. Okay, so here we are going to take two polynomials. One is p of x and another is g of x. Are two polynomials such that degree of p of x is greater than or equals to degree of g of x. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दो पॉलिनोमियल्स आपने लिए हैं, डिग्री ऑफ द p ऑफ x इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ g ऑफ x. मतलब जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना रहता है उसकी डिग्री जिससे डिवाइड करना है उससे या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी. एंड g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, ये जो g ऑफ x है जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. And we can find the polynomial q of x and r of x such that, now what is the q of x? This polynomial q of x is quotient and this polynomial r of x is remainder. And फिर अब हम लोग इसके लिए डिवीजन थ्योरम कैसे लिखेंगे? p of x डिविडेंड इज इक्वल्स टू g of x डिवाइजर मल्टीप्लाई q of x quotient प्लस r of x remainder. Okay, here we can say p of x is divided by g of x gives q of x as a quotient and r of x as a remainder. I think कि आपको ये डिवीजन थ्योरम क्लियर हो गई होगी. Okay, you must have to know about what is the difference between division theorem and remainder theorem. Here remainder theorem, the remainder theorem we discussed in the previous video, and that video you done a question also by using the remainder theorem. Same question I am going to take here. If you didn't watch the previous video, you must have to watch it. Okay, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है. फिलहाल मैं आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या करूँगा, रीड कर दूँगा. तो फॉर दैट पर्पस पहले आप ये समझिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन थ्योरम एंड व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज इज वन थिंग दैट वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर in both theorems. We have to find the remainder in remainder theorem also. We have to find the remainder in division theorem also. Okay, this is the similarities. And what is the difference? In remainder theorem we can't say anything about the quotient. वहाँ पे हमको quotient पता नहीं चलता रिमाइंडर थ्योरम में. बट इन डिवीजन थ्योरम हमें quotient की भी नॉलेज हो जाती है. ओके, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था
वही सेम क्वेश्चन हम लोग अब डिवीज़न थ्योरम में करने जा रहे हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम में करने का मेथड अलग होता है और डिवीज़न थ्योरम में करने का मेथड अलग होता है। ये जो डिवीज़न थ्योरम का मेथड है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन इज नॉट रिटन हियर रिटन व्हाट, सेम एज इन रिमाइंडर थ्योरम। मतलब हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में किया था। एंड वाई वी आर गोइंग टू डू सेम क्वेश्चन, हम उसी सेम क्वेश्चन को इसलिए करने जा रहे हैं बिकॉज मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे हम क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से करें, चाहे हम क्वेश्चन को डिवीज़न थ्योरम से करें, वी गेट द सेम रिमाइंडर, हमको सेम रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, द क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर when polynomial 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 is divided by x minus 1. One more thing is arises. Before starting the question, I want to tell you one more thing that जब क्वेश्चन हमसे ये कहेगा, देखिए लैंग्वेज सेम है रिमाइंडर थ्योरम में भी और डिवीज़न थ्योरम में भी, तो जब क्वेश्चन हमसे ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने को कहेगा तो हम कैसे सोच पाएंगे कि वी हैव टू अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम और वी हैव टू अप्लाई द डिवीज़न थ्योरम। ओके, वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू दैट रिमाइंडर थ्योरम इज टू इजी एज कंपेरिजन टू द डिवीज़न थ्योरम। तो अगर कभी भी रिमाइंडर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल में, तो आपका मन बार बार आपसे कहेगा कि आप उसको किससे करें, रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इजी है। डिवीज़न थ्योरम से करने का मन आपको नहीं करेगा। बट इफ़ देयर इज़ अ बाउंडेशन इन क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, मतलब यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द डिवीज़न थ्योरम और बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपको ये दो वर्ड्स क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगर इस मेथड से करने के लिए वो आपको बाउंडेशन करेगा तो, ठीक है, वर्ड टू वर्ड्स, यू हैव टू डू इट बाय डिवीज़न थ्योरम और यू हैव टू डू इट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, सेम थिंग। इसे हम डिवीज़न थ्योरम भी कहते हैं और इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। तो कोई भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना तो नहीं चाहता है। इफ़ देयर इज़ अ बाउंडेशन इन द क्वेश्चन, so you must have to do by the long division method, otherwise you will not get any marks. Okay, now I am going to perform the long division method step by step. You must have to watch it very properly. Okay, लुक हियर, हम लोग यहाँ पे डिवीज़न का पूरा प्रोसेस जैसे होता है उस तरीके से इसको बना लिया। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम x माइनस 1 से। ओके, मेन टारगेट हमारा होता है कि ये जो फर्स्ट नंबर है दोनों में ये सेम कर लिया जाए। मतलब किसी यहाँ पे हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये और ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है, 3x की पावर 4 और यहाँ पे क्या है, x। तो सबसे पहले यहाँ पे है 3 और यहाँ 3 नहीं है, तो हम डिवीज़न में पहले 3 लेंगे। फिर यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर सिर्फ 1 है, तो कितनी पावर कम है, 3 पावर्स कम है, तो इसलिए हम x की पावर 3 लेंगे। तो पहला डिवीज़न आपका गया 3x क्यूब टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 3x क्यूब में x से 3x क्यूब से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब। फिर हम साइन चेंज करते हैं, ये कंपलसरी होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज़ ऊपर नीचे है लेकिन साइन अपोजिट है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम पहले वाले को इक्वल ही इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। इसको आप ऑपरेट कर लीजिए, ये आपका x क्यूब 4 टाइम्स है माइनस में, ये x क्यूब 3 टाइम्स है प्लस में,
प्लस और माइनस का साइन चेंज हो करके सब्ट्रैक्ट होगा ये, और ये बड़ा है तो इसलिए नीचे साइन आएगा माइनस का। एंड 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 1x³ में सिर्फ लिखेंगे x³। एंड बाकी जो दोनों बच रहे हैं -3x -1 उनको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, नाउ हियर दिस इज -x³, फर्स्ट टर्म इज -x³ एंड हियर फर्स्ट टर्म इज x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, एंड दिस इज x³ x⁻³ और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी पावर कम है 2, तो डिवीजन आपका जाएगा x² टाइम्स। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई x -1 बाई वॉट -x²। -x² से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ -x³। -x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज़ +x²। नाउ चेंज द साइन, फर्स्ट थिंग इज कट, ओके, एंड नाउ ऑपरेट द अदर थिंग्स। हियर लुक, नीचे आपका क्या है x², ऊपर x² का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये x² एज इट इज़ अपने साइन के साथ नीचे आ जाएगा -x² एंड -3x -1। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे फिर से हमको वही करना है, पहले वाले को सेम करना रहता है। ठीक है, प्रोसेस समझ गए, पहले वाले को हमें क्या करना रहता है सेम करना रहता है। यहाँ पे माइनस है तो पहले हम यहाँ माइनस लगा देंगे, हियर x⁻² एंड हियर x⁻1, पावर 1 इज लेस सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई x। ठीक है, x की पावर 1 टाइम्स डिवीजन जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे -x से इसमें मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, -x से x में मल्टीप्लाई करेंगे -x², माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x। नाउ चेंज द साइन, ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल इट, एंड नाउ x 3 टाइम्स माइनस में और ये x 1 टाइम्स माइनस में। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहाँ पे माइनस में है तो ये 3 और 1 मिलके हो गया 4 टाइम्स, क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं तो ऐड हो जाएगा, तो -4x एंड नाउ इट इज़ -1। ओके, नाउ यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि सबसे आगे क्या है माइनस, तो पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, एंड पहला नंबर आपका है 4x और यहाँ पे क्या है सिर्फ x, तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी 4 की, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब -4 से इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे -4 का x में मल्टीप्लाई -4x, और -4 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +4, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड -1 एंड -4 हो जाएगा -5। अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर यहाँ पे भी -5 आया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू उसी क्वेश्चन में रिमाइंडर कैलकुलेट किया था तो वहाँ भी -5 आया था, और यहाँ पे हम लोगों ने डिवीज़न थ्योरम में भी उसको परफॉर्म किया तो यहाँ पे भी आपका -5 आया। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से करें या डिवीज़न थ्योरम से करें हमारा आंसर सेम आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। बट अगर क्वेश्चन में बाउंडेशन लगा देता है कि यू हैव टू डू बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तब तो फिर आपको यही करना है, फिर तो आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना अलाउ नहीं है। लेकिन अगर बाउंडेशन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें, वो काफ़ी ईजी है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता और बहुत ईजिली उसमें से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।